السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو بیسٹ ناولس۔ تو ناول حفاظت کے ایپیسوڈ نمبر 10 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کے کھانے پر وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ ملازمہ نہ جانے کتنے دفعے اسے کھانے کا کہہ چکی تھی لیکن اس کا اکیلے کھانے کو بالکل دل نہ چاہا تھا۔ سوؤ گی تو نہیں؟ نہیں، انتظار کرو گی؟ ہاں۔ صبح کے آخری کچھ لمحے یاد کرتے ہوئے اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ کیا اس کی پہلی محبت اتنی سستی تھی کہ وہ اس نئے رشتے کی وجہ سے بھول جاتی؟ اس کے دل دماغ دونوں نے نفی کیا تھا۔ انہی سوچوں میں کب کسی نے اسے مخاطب کیا تھا، اسے معلوم بھی نہ ہوا تھا۔ کس کو سوچ رہی ہو اتنا مغرور ہو کر؟ وہ اس کے سامنے چٹکی بجاتا ہوا شکوے سے بولا تھا کیونکہ اس کی موجودگی کو وہ فراموش کر سکی تھی۔ کسی کو نہیں۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی صوفے سے اٹھی۔ ویل، کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ اگر کھا لیا ہے تو بالکنی میں آ جاؤ۔ اگلائے پابندی گھڑی پہ ٹائم دیکھتا ہوا اس سے مخاطب ہوا تھا جہاں 12 بج رہے تھے۔ اسے اچھا محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بالکنی میں موجود تھے۔ رات کی خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ وہ جب کرسی پہ آ کے بیٹھی تو ضامن نے پہلا سوال کیا تھا۔ جیسی تھی؟ الٹا جواب دینا اس کی شاید عادت تھی یا اس وقت وہ اس طرح کر رہی تھی۔ وہ ہنکار بھرتا رہ چپ ہو گیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس سے بات کرنا شروع کر سکے۔ کیا اتنی جلدی ٹھیک ہوگا اس سے معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ سب کرنا؟ ضامن سوچنے میں مگن ہو گیا تھا جبکہ ایام لاپرواہ سی کرسی پر بیٹھی زمین کو گھورنے میں مگن تھی۔ مجھے پتہ ہے تمہارے پاؤں بہت حسین ہیں۔ وہ اس کے اسٹل بیٹھنے اور زمین کو مستقل گھورنے پہ چوٹ کرتا بولا۔ فنی، وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی اور پھر چپ ہو گئی تھی۔ تمہاری جس سے شادی ہو رہی تھی ایام، وہ کون تھا؟ تمہارے جاننے والا تھا یا باہر سے تھا؟ بالآخر وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ ایام نے اس کا سوال سن کے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے زیادہ تیز جاگنے کی خبر دے رہے تھے۔ بالوں کو کان کے پیچھے الجھتی وہ تک کے بولی تھی، براہ مہربانی مجھ تک رہیں آپ۔ گہرا آلود نظر ضامن کے وجود پہ ڈال کے وہ رخ پھیر گئی تھی جیسے اس کی ذات ایام کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ میرا پیشہ ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو تلاش کرنا ہو صرف اس تک ہی محدود رہوں۔ ارد گرد چاروں طرف ہر طرف سے مقابل خواتین میں لینا میری عادت ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بغور دیکھتا ہوا بولا تھا۔ جب ایام کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑنے لگی تھی۔ ارے میرا مطلب جاننا تمہارے بس کا کام کہاں ہے۔ میرا مطلب سنو گی تو یقیناً بے ہوش ہو جاؤ گی۔ مکروہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا وہ بولا تھا، آپ مجھے کنفیوز کر رہی ہیں۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں سے اس کے بال بار چہرے پہ آ رہے تھے۔ ان کو کان کے پیچھے اڑوستی وہ کنفیوز سی بولی تھی، تم کنفیوز ہونے کے لیے وہیں بنی ہو۔ مقابل کا جواب لاجواب تھا کہ ایام چپ ہو گئی تھی۔ مطلب اس سے کچھ پوچھنا بیکار اور بے معنی تھا۔ تم نے بتایا نہیں کون تھا وہ؟ اب ضامن ذرا سخت آواز میں بولا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس کا ٹھنڈا پسینے سے شرابور ہاتھ کو تھام کر اس کے پیٹھ سے ہلاتا ہوا بولا تھا۔ ایام مزید کنفیوز ہو رہی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی بھرپور کوشش میں وہ بولی تھی، کزن۔ اس کی قربت دیکھ کے خود بخود اس کے منہ سے نکلا تھا، اوہ مائی گڈنس۔ ضامن کا ایک جاندار کہکہا پرسکون فضا میں گونجا تھا۔ ایام نے مسکین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ موصوف کزن تھے۔ نام کیا تھا تمہارے سو کالڈ کزن کا؟ اس کے ہاتھ کو کھینچ کر اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے بولا تھا۔ ایام اگلی حرکت پہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنے والے لمحات کے لیے وہ خوف زدہ سی ہوئی تھی۔ وہ برہان ہے، وہ سہم کر بولی تھی۔ اچھا اب ریلیکس ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات پر غور دیکھتا بولا تھا اور اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ اتنا کافی تھا اس کو اگلوانے کے لیے۔ وہ ذرا سی پرسکون ہی ہوئی تھی جب ضامن نے دوسرا سوال کیا تھا، تم لوگ پھر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہو گے؟ نہ جانے کیسے تشویشناک اس کا لہجہ تھا۔ ہاں، وہ فوراً بولی تھی۔ پھر شادی تک بات کیسے پہنچی؟ اس کے سوال پہ ایام نے آنکھیں واں کر کے اسے دیکھا تھا جو اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ ایک جواب ایک لمحے پہ ضامن کی نظر اس کے وجود اس کے چہرے پہ اٹکی ہوئی تھی۔ کیسے بات پہنچی شادی تک بیوی؟ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اس کا حوصلہ بڑھاتا نرم لہجے میں گویا ہوا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ایک تھا وہ تھکا ہوا شاید ذلت بھرا جواب اس نے دیا تھا، اگر محبت ہوتی تو ابھی وہ اس سے دور تو نہ ہوتی۔ اور تم؟ ضامن کے چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہم دونوں۔ وہ نظریں نیچے کی آنسوؤں کو پینے کی کوشش میں دھیرے سے بولی تھی، معلوم ہے مجھے کہ تمہیں اس سو کالڈ سے کتنی محبت ہے۔ ذرا سی چپ کے بعد بولا تھا، اچھی طرح اسے پہلے دن سے ہی معلوم تھا کہ کس قدر وہ اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی لڑکی ہے، لیکن خیر اسی کی فکر تھی۔ وہ اپنا کام کر رہا تھا، کام سے مطلب اس کا مقصد تھا۔ وہ سو کالڈ نہیں ہے۔ دوسری بار برہان کے بارے میں یہ لفظ سن کے وہ دکھ بھری لہجے میں بولی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ سو کالڈ ہی ہے جو تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ گیا۔ ضامن کو اس کا اس طرح بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ میری قسمت تھی، وہ چلائی تھی۔ قسمت کا نام دے دیا، واہ بہت شاطر ہو یار تم۔ بیوی بالکل کوئی چھوٹی سی کم سن بے عقل معلوم نہیں ہوتی۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ کھولتا
खुद को गुस्सा दिला करने से रोकता आराम से बोला था, अच्छा चलो दोस्ती कर लो, मैं कुछ नहीं कह रहा तुम्हारे बुरहान को। किस कदर फिराक दिली से वो तुम्हारा बुरहान कह गया था, ये सिर्फ वही जानता था। न जाने अब इसी क्या क्या करना पड़ता। वो इसके बाद पे रुख फेर गई थी। मुझे नहीं करनी, वो मुंह बना के बोली थी। प्लीज़। जामिन ने सिगरेट का पैकेट वापस रखा था। रस करो, हाँ, अपनी जानी मोड़ा था। ओके। वो मुख्तसर सा बोल के चुप हो गई थी। तुम्हें किस तरह इससे मोहब्बत हुई थी? जामिन के अगले सवाल में चौंकी थी। ये कैसा सवाल है? इसकी समझ से बाहर था कि आखिर क्या पूछना चाहता है वो शख्स। मुझे नहीं पता ना मोहब्बत के बारे में। तुम बताओगे तो मुझे ज़रा सा मालूम हो जाएगा। अगर मुझे किसी से मोहब्बत होगी तो। वो अच्छी तरह बात बनाता। मोहब्बत पाश लहजे में बोला। अजीब। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, शायद इसलिए वो अपने ही लापरवाह से अंदाज में बोल गई थी। अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा तो क्या तुम्हें मुझसे भी मोहब्बत हो जाएगी? जामी ने अचानक सवाल किया था। हयाम छटपटाई थी, क्योंकि अभी जो मोहब्बत के बारे में जानना चाह रहा था, अब वो ही ये कह रहा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। वो बारहा एतमाद से बोली थी। फिर तुम्हारा मतलब भी तो यही है ना बीवी? वो कुर्सी की कुर्सी पे सर डालकर आराम से बोला था। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मतलब आपकी डिक्शनरी में लफ्ज़ मोहब्बत के मानी अलग है, जबकि मेरी राय और मानी बिल्कुल अलग है, जो आप नहीं समझ सकते। वो ज़्यादा देर में ही बदगुमान होती कुर्सी से उठते हुए बोली थी। जामिन की बात ने इसको गुस्सा दिलाया था। बस। यस, मेरी मोहब्बत में तुम कपड़े मेरी मर्ज़ी से पहनोगी, खाना मेरी मर्ज़ी से खाओगी, प्यार भी मेरी मर्ज़ी से होगा, उठोगी भी मेरी मर्ज़ी से, सोओगी भी मेरी मर्ज़ी से, जागोगी भी मेरी मर्ज़ी से। यहाँ तक कि जब बोलोगी तो वो भी मेरी मर्ज़ी से। मेरी डिक्शनरी में मोहब्बत ये है। वो इसकी कलाई पकड़ते दोबारा कुर्सी पर बिठाते इसकी आंखों में देखकर रोबदार लहजे में बोला था। वजूद मेरा होगा, राज आप करेंगे। हजाम तब कहती कितना मीन शख्स था ये। अब वो इसकी मर्ज़ी से चलेगी क्या? काफ़ी समझदार हो। एक तंज़ मुस्कुराहट जामिन के चेहरे पे आई थी। मुझे नहीं करनी आपसे मजीद बात। वो दोबारा कुर्सी से उठती नाराज़गी भरे लहजे में बोली थी, जैसे से जामिन की ये बात बहुत बुरी लगी हो। बार बार भागती क्यों हो? मुझे क्यों अकेला छोड़ती हो बार बार? वो इसकी कलाई एक बार फिर पकड़ के ज़रा सा झटका देकर दोबारा बिठा चुका था, लेकिन अब इसने इसकी कलाई बिल्कुल न छोड़ी थी। क्योंकि मुझे भी सब बार बार अधूरे रास्ते में छोड़ जाते हैं, यूँ बार बार एक साथ। ये सब मुझे राज नहीं आ रहा। और वो दर्द भरे अंदाज में कहती जामिन को चौंका गई थी। एक तरफ हयाम के चेहरे पे था इसकी दास्तान, और क्या। जामिन पूरी तवज्जो से इसे सुन रहा था। और मुझे अच्छी तरह यकीन है कि आप भी मुझे एक दिन छोड़ देंगी। वो अपनी कलाई के हाथ की ग्रिप से छुड़वाती बोली थी। तुम कैसे ये कह सकते हो? इसकी अकल पे जामिन को मातम करने का दिल चाहा था, क्योंकि सब भी छोड़ देते हैं। आम से अंदाज से हयाम ने कहा था। ये तो बहुत आम से जुमला हुआ। कुछ ऐसी बात कहो जिस पर मैं इत्तेफाक कर सकूं। वह गहरा सांस लेता पुरसकून से बोला था। अब मैं क्या कहूँ? मुझे कुछ नहीं कहना। वो जैसे इसे बोलने का मौका दे रहा था। मेरे ख्याल में ऐसे बनाए गए रिश्ते ज़्यादा पायदार नहीं होते। मिलाकर वो बोली थी। थैंक गॉड आपको मालूम तो हुआ कि हमारे बीच कोई रिश्ता बना हुआ है। जामिन इस्तेज़ाइया हंसा था। आप में एक अलग नुमा तंज था। अच्छा तुम सो जाओ, जाकर आज़ाद हो गए। जब वो मुझे कुछ कहना नहीं चाह रही थी, तब जामिन ने इसे खुले दिल से इजाज़त दी थी। इसके कहने की देर थी कि वो एकदम से उठ के भाग गई थी, जबकि जामिन वहीं कुर्सी की पुश्त पे सर डाल के पाँव टेबल पे रख के मोबाइल के इस्तेमाल में मसरूफ़ हो गया था। क्या ज़रूरत थी भाभी आपको सब बुरहान को बताने की? आपको पता है ना वो कितना टेंस है आजकल। आरज़ू बेगम ने चाय का मग थमाते नाराज़गी भरे लहजे में बोली थी। शाम की चाय पे नीला बेगम और मारिया दोनों यहाँ आए हुए थे। एक दिन तो पता चलना था ना, फिर अभी क्यों नहीं? जितनी जल्द से सच्चाई का इल्म हो जाए इतना ही फ़ायदेमंद होता है। नीला बेगम मग थमाती बोली थी। लेकिन बुरहान रात को इसने पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे ही वो लड़की मेरे बेटे के जहन्नुम में झोंक कर निकल चुकी है। वो चेहरे पे सख्त तासरात लाए गुस्से से बोली थी। आरज़ू दफ़ा करो इसे। अब अक्लमंदाना मशवरा यही है कि वो चाय का सिप लेती ज़रा ठहरी थी। जी भाभी कहें आप बुरहान की जल्द अज जल्द शादी करवा दो। कोई साथ होगा तो इसका दुख दर्द सब बांटेगा। यहाँ फिर क्या चीज़ है? वो अपने मतलब का मशवरा इन्हें दे सकी थी। आप ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन वो कहाँ मानेगा? मैंने इसे कितना समझाया था कि आयाम को छोड़कर मारिया पे गौर करे, लेकिन इस लड़के ने मेरे बेटे को जितने लायक नहीं छोड़ा। मैं इससे ठीक से बात नहीं करता। वो तकलीफ़देह अंदाज में बोले थी। तुम देख लो आरज़ू, मारिया के काफ़ी रिश्ते आए हुए हैं। अगर तुम्हें बुरहान के लिए वो बेहतरीन चॉइस लगती है तो तुम मेरी नंद हो। पहले मेरी बेटी पे हक तुम्हारा है, वरना अब इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी है। जल्द अज जल्द मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ। भाभी मैं बात करूँगी बुरहान से। मैं तो शुरू से ही माही यही चाहती थी, लेकिन बुरहान हयाम की तरफ मायल था। वो मुस्कुरा के बोली थी। ये देखे फूफो कितना अच्छा बेक हुआ है। ये मारिया एकदम लाउंज में दाखिल होते खुशी से बोली थी। मैं जब से यहाँ आई थी किचन में घुस गई थी, खास बुरहान के लिए खुद केक बेक करने लगी थी। बहुत अच्छा है ये, वेरी गुड। आरज़ू बेगम इसकी हौसला अफजाई करना ना भूली थी। तभी बुरहान अंदरूनी गेट से घर में दाखिल हुआ नजर आया था। अस्सलाम वालेकुम मामा। वो रूखे अंदाज में सलाम जाल चुका था। मामी पे एक नज़र डाल कर मुस्कुरा भी न सका था।
आ गए तुम, बैठो मैं चाय मंगवाती हूँ। आरज़ू बेगम सोफे से उठते बोली थी। नहीं माँ, मैं आराम करूँगा। वो ऑफिस से आए तो शदीद थकन का शिकार था। किसी तरह इन सब से जान छुड़ाना चाहता था। बुरहान ये कि एक तो ट्राई कर लो, तुम्हारा फेवरेट है। और मिन्नत भरे अंदाज से इसके सामने आके बोली थी। मारिया, फॉर गॉड से किस तरह की लड़की हो तुम? तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैं आराम करना चाहता हूँ? तुम्हारा केक क्या मेरी थकावट उतार देगा? साइड पे रहा करो, बीच रास्ते ना आया करो। वो सख्त तेवरों से इसे घूरता कुछ लम्हों में इसकी अकल ठिकाने लगा चुका था और लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया था। मारिया सोफे पे ढह के रोने लगी थी। मम्मी जी, वो बेतहाशा रोने लगी थी। जिल्लत इसने कभी न सही थी। मारिया बेटा वो थोड़ा सा परेशान था। ऐसा नहीं है कुछ भी, आरज़ू बेगम से समझाने लगी। बुरहान के इस रवैये ने मारिया के साथ साथ इन्हें भी तकलीफ दी थी। दोपहर तक वो सारे काम निपटा कर पैकिंग कर चुका था। आज की फ्लाइट से वो भी कराची पहुंचना चाहता था, लेकिन इससे पहले एक जगह की विजिट करना ना भूला था। आज फिर वो इस यूनिवर्सिटी में मौजूद था, जबकि डिपार्टमेंट भी वही था। अनजाने पर मैं इसका इंतजार करता रहा था। कितनी लड़कियां इसको इस तरह खामोश देख के इसके पास से गुजरती हुई इसकी पर्सनैलिटी से मरूब होकर इस पे लाइन्स मार चुकी थी, लेकिन वो सब्र करता हुआ इसके इंतजार में था। जब इसे क्लास से इजलत में निकलती हुई दिखाई दी, ब्लू जीन्स पे ब्लैक शर्ट और ब्लू लेदर का जो बैग कंधे पे डाले आई ग्लासेस बालों में लगाए वो बाहर आई थी। इसका ही अपना स्टाइल था। आई ग्लासेस आंखों के बजाय बालों में लगाती थी। दारिम इसको देख चुका था। वह इसकी तरह वही मुंह करके बैठ गया था, शायद वो इसे देख सके। और यही हुआ था। सामने की नज़र एक बार फिर इस पे पड़ी थी। वो बिना कोई दम ज़ाया किए इसके सर पे पहुंची थी। तुम फिर आ गए यहाँ? वो इसे बगौर देखती बोली थी। ब्राउन पैंट पे वाइट शर्ट के ऊपर ब्राउन ही लेदर की जैकेट पहने वो इसके सामने था। ओह सॉरी, कौन अनजान बना था। तुम जैसे बंदों की याददाश्त इतनी कमज़ोर होगी मालूम नहीं था। हमारे मुल्क में इस तरह के एजेंट्स होंगे तो मुल्क को बचाएगा कौन? वो सीने पे दोनों हाथ बांधती तंग के बोली थी। और तुम्हें मेरा प्रोफेशन भी मालूम होगा? स्ट्रेंज। दारिम तारीफ किए बिना ना रह सका था। और देखो, तुम्हें मेरा नाम तक नहीं मालूम? वो इस्तेज़ाई हंसी थी। इसके गुलाबी गदाज होंठों पे हंसी काफ़ी भली लगी थी। नाम में क्या रखा है? चलो मैं चलता हूँ। अपने मूड को बेहतर रखता है। ये बोला था कि मैं इसको रोकेगी और वो रुक जाएगा। अभी कहाँ से चलते हो? तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम्हारे दोस्त ने मेरी कॉल तक अटेंड न की है। क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी जहाँ से? ये सोच भी कैसे लिया आखिर? गुस्से से बिलबिलाती बोली थी। दारम इसकी हालत देख के महफूज हुआ था। वो आपको और इनका हेडेक है, मेरा नहीं। दारम ने साफ खरी मिर्च दिखाई थी। ये अच्छा नहीं कर रहे आप। वो फौरन आप पे उधर आई थी, तो इससे अच्छा क्या करूँ मैं आपके लिए? दारम को इसे तंग करने में मज़ा आया था। मेरा नंबर ले लें और जल्दी से अपने दोस्त के घर जाएं। अपने नंबर से हजाम से मेरी बात करवाएं, बल्कि मुझे भी अपना नंबर दें। वो जल्दी से बोले थे। हजाम के लिए कुछ भी ये सीन था। अनजान लोगों को मैं नंबर बिल्कुल नहीं देता। सॉरी, वो इनकार कर गया था। हमारी 3 मुलाकात हो गई है, अब हम कहाँ अनजान है? मेरा नाम सामिया, मैं बिजनेस कर रही हूँ, यही पास सोसाइटी में रहती हूँ। हजाम की बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब तो नहीं रहना अनजान। इसके मुंह में जाए था बोल गई थी जाए, जबकि दारिम अपनी हंसी जब्त ना कर सका था और हंस दिया था। मेरा नंबर और तो नहीं करोगे? एक मासूमाना सवाल दारिम की तरफ से आया था। पक्का वादा नहीं? वो तो अब्बा कहते से नफ़े में हिला के रह गई थी। जल्दी बात करवा दूंगा शायद कल ही, क्योंकि मैं आज ही कराची जा रहा हूँ। वो दोनों दूसरे का नंबर एक्सचेंज कराने लगे थे, जबकि दारिम अपनी दिन की बेइज्जती का बता आराम से ले चुका था। खुद ही आज सब अपने बारे में बता चुकी थी। तुम्हें मालूम है तुम पे रेड कलर कितना खिलता है? ऐसा लगता है कि बिल्कुल रेड रोज़ हो तुम, खिला हुआ खूबसूरत। हयाम का दावा शीशे के सामने खड़ी अपने नाजुक शराब पे नज़र डाल के रह गई थी। लाल कलर की सादी सी कमीज और लाल ही चूड़ीदार पजामे में गजब ला रही थी, जबकि दुपट्टा जो शाने पे पड़ा था वो भी लाल ही रंग का था। हमेशा की तरह बुरहान पे कहे गए कुछ जुमले इसकी समातों से गुजरे थे। इन जुमलों की याद पे एकदम इसे लाल रंग अपने जिस्म पे बुरा सा लगा था। आंसुओं की लड़ी गालों पे फिसलने लगी थी। तुम कितनी करैक्टरलेस लड़की हो यार। तुमने मुझे चीट किया है। तुम्हें कितना चाहा है मैंने, तुम्हें मालूम भी है। लगाए गए अपने ऊपर कठी और जमात इसके कानों में गूंजे थे। शादी का जोड़ा लाल ही होगा तुम्हारा, ताकि जब मैं तुम्हें अपने कमरे में देखो तो मबहूत रह जाओ। एक और याद नहीं सहा गया था, मर क्यों नहीं गई थी ये लड़की अपनी माँ के साथ? न जाने कैसे कैसे लड़कों के साथ मुँह काला किया। बुरहान चलो यहाँ से। नहीं नहीं, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया था। वो कानों पे दोनों हाथ रखती जोर से चिल्लाई थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी हमने? तुम लीड्स रचाती रही। क्या मैं काफ़ी नहीं था तुम्हारे लिए? मर जाओ हयाम, तुम हमारे घर को बदनाम करके रख दिया। बारी बारी सबकी आवाज़ें इसकी इनकी सुनाई दे रही थी। रोती हुई, खुद से चिल्लाती हुई कमरे में नज़र दौड़ाने लगी थी। लाल दुपट्टा इसने अपने बदन पे से उतार फेंका था। इसे इस रंग से ही गिन आई थी। टेबल पर रखी फ्रूट बॉक्स में छुरी पे इसकी नज़र गई थी। लपक के वो इसकी तरफ गई थी। छुरी को पकड़ लेने के बाद इसने अपनी मखमली कलाई पर नज़र डाली थी और नब्ज़ पे रखी थी, लेकिन इससे वो तेज़धार छुरी भी चल न सकी थी। कैसे बर्दाश्त करती वो इद्दत, गुस्से और वहशत के आलम में इसने छुरी दूर फेंकी थी। अभी ऐसा लगा था कि वह इस पे कुछ सवार हो गया है। कपबोर्ड खंगालने के बाद इसे फिर भी कुछ अपने सुकून के लिए ना मिला था, लेकिन फिर आखिरी खाने की दराज में इसकी नज़र गई थी, जहाँ पिस्टल रखी थी। पिस्टल को इसने उठाना चाहा था, लेकिन इसके कपकपाते हाथ रुक गए थे।
चीखती हुई वो रोने लगी थी। इससे ये भी ना हो रहा था, कुछ भी तो इससे ना हो रहा था। थक हार के वो बेड की तरफ गई थी और कोने पे बैठी थी जामिन। वो जरा हाथों में छुपा कर रोने लगी थी। फ़ोन उसके पास ना था, अगर होता तो शायद उसको कॉल कर लेती। साइड टेबल की दराज खोलने के बाद इसे दवाइयों का बॉक्स मिला था। सेकंड के 1000वें हिस्से में इसने वो बॉक्स थामा था, दवाइयाँ तलाश करने लगी थी। इसका दिमाग फटने को था, ज़रा देर में ही इसकी हालत बुरी हो गई थी। इसका जी को कँपा रहा था। अपनी मतलूबा दवाई निकालने के बाद इसने गहरी सांस ली थी। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ जामिन। बॉक्स वापस रख के इसने ज़रा से एक किक लिखी थी और साइड टेबल पे रख दी थी और इसके ऊपर स्टोन रख दिया था। टैबलेट की बरनी खोल के पता नहीं कितनी गोलियां वो पानी की मदद से निगल चुकी थी और बेड के ग्राउंड से टेक लगा के अपनी किस्मत पे रोने लगी थी। जारी है। उम्मीद है आपका एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।